Hello student, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself Professor Reena Mishra. Today the topic which I am going to discuss is input tax credit. This content is useful for TY BCom, TY BFM, TY BMS SEM 6 as well as for MCom SEM 4. Today the point to be covered are apportionment of credit and blocked credit and ITC in special circumstances. Apportionment of credit and block credit is covered under section 17. As per section 17, how the credit is divided if goods or services are used for other than business purpose or for other purposes, how the apportionment of the credit takes place. If goods, services partly used for business and partly for other use, the amount of credit is restricted to the purpose of business. Only the goods or services utilized for the business purpose is allowed for credit. ITC restricted to goods or services used for taxable supplies and zero rated supplies but excludes exempt supplies. ITC input tax credit is available to all the taxable supplies of goods as well as services, and it also covers the ITC availability for the zero rated supplies. Zero rated supplies are export oriented supplies, those goods or services which are specifically manufactured or produced or rendered for the export purpose. So ITC is available on the taxable goods and supplies and zero rated supplies, but it is not available for the exempt supplies. Exempt supplies, what is exempt supplies stands for? Exempt supplies includes non-taxable supplies, those which are out of the taxability, and transactions under reverse charge mechanism, transactions in securities, and sale of land as well as sale of building. These are covered under exempt supplies and not available with the apportionment of or availability of credit. Input tax credit in case of banking company and financial institution either comply with above provision or 50% of the eligible amount. अगर कोई बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए उनको अबाव कंडीशन एप्लीकेबल होगा और अदर देन दैट 50% ऑफ द एलिजिबल अमाउंट उनको डिडक्टिबल होता है. Then the next is blocked credit. ITC blocked credit. Blocked credit यानी वो goods और services जहाँ पे ITC का benefit नहीं मिलता है. तो हम देखेंगे अभी कि कौन से ऐसे goods and services जहाँ पर कि ITC benefit avail नहीं कर सकते. Input tax credit not to be availed in respect of the following situations. That is motor car and other conveyance. No ITC can be claimed on motor car and other conveyance except it is used for further supply or transportation of passengers, transportation of goods, or imparting training who is to drive, navigate or fly it. नॉर्मल केस में मोटर व्हीकल्स पे या किसी अदर मोड ऑफ कन्वेंस के ऊपर आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर वो कन्वेंस या वो व्हीकल फॉलोइंग यूज के लिए है तो उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं. अगर वो सप्लाई में यूज हो रहा है या पैसेंजर्स या गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है या फिर किसी को ड्राइविंग, नेविगेशन या फ्लाई सिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, देन इट कैन बी अवेल्ड. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ. यहाँ पर हम लोग कुछ गुड्स एंड सर्विसेज देखेंगे जिसकी सप्लाई पे आईटीसी क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते. गुड्स, फूड एंड बेवरेजेस. नॉर्मली द फूड विच इज सर्व्ड इन द रेस्टोरेंट, होटल्स, बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेवरेजेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, cosmetic surgery, health services, outdoor catering. These are the different services as well as goods on which no ITC can be claimed.
ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज को ट्रैवल बेनिफिट दे रहे हैं तो उस पर भी आईटीसी क्रेडिट क्लेम नहीं होगा। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, किसी भी क्लब की मेंबरशिप ली है, लाइक स्पोर्ट्स क्लब हो गया, कोई चैरिटेबल क्लब हो गया, या हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर फॉर एग्जांपल जिम एंड अदर हेल्थ केयर सेंटर्स, तो वहाँ पर अगर मेंबरशिप ली है तो वो मेंबरशिप पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। रेंट अ कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ सर्विसेज, एनी टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड रेंट अ कैब, कैब रेंट करना लाइक उबर, ओला, ये सब जो सर्विसेज हैं इसके ऊपर भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। बट इन केस गवर्नमेंट ने कुछ मैंडेटरी किया है एम्प्लॉयज के लिए, देन इट इज अ डिफरेंट केस। इन नॉर्मल कोर्स दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल विद द आईटीसी बेनिफिट। Next is works contract services for construction of immovable property other than plant and machinery. Other than plant and machinery, the other immovable property if we talk about it is building, bungalow or some kind of civil construction. तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके ऊपर भी आईटीसी क्लेम नहीं होता है। सप्लाई वेयर टैक्स इज लेविड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर कोई भी सप्लाई कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर हो रहा है, कॉम्पोजिशन स्कीम वेयर द taxpayer is liable to pay the nominal rate of taxes or minimum rate of taxes, so once he is accessible to composition scheme he cannot avail the ITC। अगर वो composition scheme का benefit ले रहा है तो फिर वो ITC claim नहीं कर सकता है। Goods supplies used for personal consumption, now the ITC claim is only restricted to the बिजनेस, द कंजम्पशन विच इज फॉर द बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए या कोई या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कोई कंजम्पशन किया है तो उस पर भी आईटीसी इज ब्लॉक्ड, इट इज कैनॉट बी एंटरटेन। देन गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, अगर कोई भी गिफ्ट लॉस्ट हो गया है, गुम गया, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, तो अगर ये सब रीजन की वजह से गुड्स को राइट ऑफ किया है, डिस्पोज हुआ है, देन दीज गुड्स कैन नॉट बी अवेल फॉर द आईटीसी, तो ऐसे गुड्स के ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। एनी टैक्स पेड आफ्टर इशुएंस ऑफ SCN विथ रेस्पेक्ट टू सच SCN, डिटेंशन और कॉन्फिस्केशन, अगर कोई भी टैक्स शो कॉज नोटिस के अंडर पे किया है तो वहां पे भी आईटीसी क्लेम नहीं हो सकता। सो दीज आर द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज वेयर द आईटी इज ब्लॉक्ड, द आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड। Further, the ITC in special circumstances. What are those special circumstances, special conditions under which ITC can be availed? Person who would like to take credit of input lying in stock or contained in finished goods or semi-finished goods at the time of registration. During the registration under GST Act 2017, अगर उसके गुड्स जो पर्सन रजिस्टर है, लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके गुड्स स्टॉक में है, फिनिश्ड गुड्स है या सेमी फिनिश्ड गुड्स है, तो ऐसे टाइम पे वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। कंडीशन इज ही शुड अप्लाई विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लाइबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन एंड द क्रेडिट ऑन सच इनपुट्स हेल्ड ऑन द डे इमीडिएटली लाइबल टू पे टैक्स। व्हेन द पर्सन बिकम्स लाइबल टू रजिस्टर he should register himself within 30 days, जिस दिन से, जिस तारीख से वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो रहा है वो डेट से लेकर के नेक्स्ट 30 डेज के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन इस तरह से टाइम पे होता है तो वो इन गुड्स के ऊपर जिस पे वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है वहां पर वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। एंड अदर केसेस, इन केस ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, then the credit of such input held in stock immediately preceding the date of registration। और अगर पर्सन assessee लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो वॉलंटरी अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो स्टॉक उसके पास रहेगा वहां पर वो वहां पर वो आईटीसी क्लेम कर सकता है।
In case of voluntary registration, the ITC is available only after the registration. Next is, if registered person ceases pay tax under composition scheme or his exempt supply becomes taxable supply. अगर रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है, कॉम्पोजिशन स्कीम का उसको बेनिफिट नहीं है, ही इज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, एंड यहाँ पर जो कि वो एग्जाम सप्लाई करता था लेकिन अभी उसकी सप्लाईज टैक्सेबल है. ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्हेन अ पर्सन बिकम्स लाइबल टू पे द टैक्सेस, ही इज नीदर अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम नॉर हिज सप्लाईज आर एग्जेम्प्टेड, दैट इज हिज सप्लाईज आर टैक्सेबल. तो वो आईटीसी के लिए कैसे क्लेम करेगा? ही कैन टेक क्रेडिट टैक्स paid on such inputs held in stock on the date immediately preceding the date from which he becomes liable to pay the taxes. The date from which he becomes liable to pay the taxes, he has to claim for the credit. उसको immediately वो date से tax ITC के लिए claim करना है. He can take credit of tax paid on capital goods exclusively used for such goods or services. Even जो भी उसने कैपिटल गुड्स यूज किया है, ऐसे एक्सक्लूसिव कैपिटल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर भी उसको टैक्स क्रेडिट बेनिफिट अवेलेबल होता है. एंड इफ कैपिटल गुड्स आर सप्लाइड ऑन विच क्रेडिट वाज टेकन, पर्सन शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू सच क्रेडिट reduced by percentage, points or transaction value of such supply whichever is higher. If capital goods are supplied, ऐसे capital goods जो सप्लाई हुए हैं और जिसके ऊपर क्रेडिट ऑलरेडी अवेल हो चुका है, तो वहां पर जो इक्वल अमाउंट है, दो अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होगा, दैट इज द क्रेडिट रेड्यूस्ड इन परसेंटेज और पॉइंट्स. जितना रिडक्शन होगा क्रेडिट में, इट इज कॉम्प्यूटेड एज पर द स्पेसिफिक रेट ऑफ परसेंटेज, और उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है. तो परसेंटेज वैल्यू और ट्रांजेक्शन वैल्यू दोनों में जो वैल्यू हायर होगी, दैट अमाउंट कैन बी क्लेम फॉर द आईटीसी इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स. एंड person has the option in case of supply, refractory, bricks, mold and jigs, mold dies and jigs and fixtures. In the following goods, he has the option for the claim of ITC. So these were the special circumstances where the assessee can claim for the ITC credit. Thank you.